Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video, we are going to discuss previous year questions of quantum chemistry which was asked in December 2016 CSIR NET exam. Okay friends, so let's start. See, this is your first question friends. Question says the correct normalized wave function for one of the sp2 hybrid orbitals is, एंड यू हैव फोर ऑप्शन फ्रेंड्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए देखते हैं। सी, वी नो फॉर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन वी हैव कंडीशन दैट इज फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन we have condition that is c1 square plus c2 square plus c3 square is equals to 1. It means the sum of square of the all wave function should be 1. Okay friends, so if you get c1 is equals to 1 upon root 3, then your c1 square will be 1 upon 3. First relation. If you get c2 is equals to 1 upon root 2, then your c2 square will be 1 upon 2. Okay friends, and c3 is equals to 1 upon root 6, then you get c3 square is 1 upon 6. Now you add all of these values, that is 1 upon 3 plus 1 upon 2 plus 1 upon 6. You get 36 upon 36, that is 1. It means when you place the values of 1 by 3, 1 by 2 and 1 by 6, or 1 by root 3, 1 by root 2, 1 by root 6 in your wave function, then it should be your normalized wave function according to this condition. Okay friends, so in sp2 orbitals you the value should be 1 by root 3 psi 2s plus 1 by root 2 psi 2px plus 1 by root 6 psi 2py. Okay friends, this should be a normalized wave functions according to this. So your option number 3 is the correct answer of this question. ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? सही आंसर है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज वाइब्रेशंस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली मॉडल्ड बाय अ हार्मोनिक पोटेंशियल। इफ द पोटेंशियल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर, द करेक्ट स्टेटमेंट इज, एंड यू हैव 4 ऑप्शन फ्रेंड्स। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक तो फोर्स कांस्टेंट की, sorry, not force constant, that is force, and एक आपको फाइंड करना है force. So you should find the value of force and force constant according to your options. Okay friends, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं। चलिए देखते हैं। सी, आपको क्या गिवन है? पोटेंशियल, that is V। ये कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। वी की वैल्यू क्या? एक्स स्क्वायर है, तो माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होता है। एक्स टू दी पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है ना फ्रेंड्स। तो एन क्या यहाँ पे 2 आगे आ गया, एक्स की पावर 1 माइनस 2x। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके जो फोर्स आया वो कितना आया? माइनस 2x। अब देखिए, यू नो द वैल्यू ऑफ v इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ये तो वैल्यू आपको पता है हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। एंड क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू कितनी गिवन है? एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स आपका जो हाफ एक्स स्क्वायर हो किसके इक्वल हो गया? एक्स स्क्वायर के। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, तो यहाँ से जब आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो हाफ के किसके बराबर हो गया? 1 के। तो यहाँ से आपका के कितना हो गया? 2।
एंड यहाँ पर आपको पता है के क्या होता है आपका फोर्स कांस्टेंट, के इज योर फोर्स कांस्टेंट. So the value of force is minus 2x and the value of force constant is 2. So your option number B or second is your correct answer in this question. The value of force is minus 2x and the value of force constant is 2. Okay friends, ये था आपका second question. चलिए next question देखते हैं. See, this is your next question friends. Question says the orbital degeneracy of the level of a one electron atomic system with Z is equals to 5 and energy is nearly equals to minus 13.6 electron volt is, and you have 4 option friends. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स. चलिए देखते हैं. सी आपको क्या गिवन है फ्रेंड्स, एनर्जी की वैल्यू गिवन है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फॉर्मूला आपको पता होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. यहाँ पर जो आपका एन स्क्वायर होता है वो होती है आपकी ऑर्बिटल डीजनरेसी. ओके फ्रेंड्स, एंड इसी की वैल्यू आपको क्या फाइंड करनी है एन स्क्वायर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो देखिए फ्रेंड्स, ई की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है, सारी वैल्यूज इसमें रख दीजिए. ई की वैल्यू कितनी है -13.6 इज इक्वल्स टू -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड की वैल्यू कितनी गिवन है 5 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. -13.6 से -13.6 कैंसिल, तो यहाँ से आपका एन स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 25. So your option number 3 is the correct answer of this question, that is 25. Okay friends, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. See, this is your next question friends. Question says if we write a normalized wave function psi is equals to a cap phi, then phi is also normalized when, and you have 4 option friends. 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. आपको ये फाइंड करना है फ्रेंड्स, आपको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन गिवन है जिसके अंदर आपको एक और वेव फंक्शन है फाई. तो ये फाई किस कंडीशन में नॉर्मलाइज होगा, चारों ऑप्शन में से आपको देखकर फाइंड करना है. ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. चलिए देखते हैं. सी देखिए फ्रेंड्स, आपको गिवन क्या है, साई इज इक्वल्स टू ए कैप फाई. ये क्या आपका एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है. इट इज़ अ नॉर्मलाइज वेव फंक्शन. तो साई तो नॉर्मलाइज है, आपको ये फाइंड करना है कि ये जो फाई है ये कब नॉर्मलाइज होगा. अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है आपके साई नॉर्मलाइज होने का मीन्स क्या होगा, कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, साई इंटू साई स्टार डी टो इज इक्वल्स टू 1. ये तो कंडीशन आपको गिवन है, नॉर्मलाइज है ये. जब कोई भी फंक्शन नॉर्मलाइज होता है तो ये साई इंटू साई उस फंक्शन एंड उस फंक्शन का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है वो मल्टीप्लाई बाय डी टू इज इक्वल्स टू 1. ये क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है साई स्टार. साई स्टार इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई. आपको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, फाई कब नॉर्मलाइज होगा. मीन्स आपको फाइंड करना है जो आपका फाई है ये इस कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, फाई की नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन. ये आपको क्या है फाइंड करना है. समझ आ गया फ्रेंड्स. अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं अपन फ्रेंड्स. देखिए ये वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पर साई की जगह आप ए कैप फाई रख दीजिए जो क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे आप रख दीजिए ए कैप फाई डॉट, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो ए कैप स्टार डॉट फाई स्टार डी टो इज इक्वल्स टू 1. ये हो गया. यहाँ से आप क्या करिए, ए कैप एंड ए टर्म को अलग कर लीजिए, ए कैप डॉट ए कैप स्टार. सिमिलरली फाई डॉट फाई स्टार डी टो इज इक्वल्स टू 1. इतना आपको समझ आ गया. यहाँ से आप क्या करिए, इसको टर्म को बाहर ले लीजिए, ए इंटू ए कैप स्टार.
मीन्स ए कैप एंड इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आपने क्या करा, बाहर लिया एंड ये आपने लिया अंदर, फाई डॉट फाई स्टार डी टॉ इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये वाली टर्म देखिए फ्रेंड्स, ये वाली टर्म क्या है आपके नॉर्मलाइज फंक्शन ऑफ फाई, इसी से मैच खा रही है। तो देखिए आपको अगर आपको इस टर्म को 1 करना है तो इट मीन्स आपके जो ये ए डॉट ए स्टार वाली टर्म है इसको क्या होना होगा, 1 होना होगा। वापस समझिए, अगर आपको इस टर्म को यानी नॉर्मलाइजेशन जो है फाई का 1 करना है या नॉर्मलाइज करना है फाई को, तब आपको क्या है जो ए कैप डॉट ए कैप स्टार है उसकी वैल्यू क्या है 1 करनी होगी, तभी तो ये पूरी टर्म क्या आएगी 1 आएगी। इट मीन्स जो आपका ये वैल्यू है द नॉर्मलाइजेशन ऑफ फाई ये 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स आपको क्या है व्हेन ए कैप डॉट ए कैप स्टार इज इक्वल टू 1, इसको आप बोलेंगे यूनिटरी। व्हेन ए कैप डॉट ए कैप स्टार इज यूनिटरी देन दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई, दैट इज द नॉर्मलाइजेशन ऑफ फाई। एंड ये आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स कि ए कैप इज यूनिटरी, व्हेन ए कैप इज यूनिटरी देन द फाई शुड ऑल्सो बी नॉर्मलाइज्ड। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ सर्टेन सिस्टम विथ एनर्जी एप्सिलॉन नॉट इज सब्जेक्टेड टू अ पर्टर्बेशन v yielding a first order correction epsilon 1. If E naught is the true ground state energy of the perturbation system, the inequality that always holds is, and you have 4 option friends। आपको एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन 1 एंड E नॉट में रिलेशन फाइंड करना है। पर्टर्बेशन मेथड इसमें दिया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते किस तरह से होगा। देखिए फ्रेंड्स, पर्टर्बेशन थ्योरी में क्या होता है, द एनर्जी ऑफ पर्टर्ब्ड सिस्टम इज इक्वल और ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सिस्टम। ये इसका एक स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। वापस से बोलता हूँ, द एनर्जी ऑफ पर्टर्ब्ड सिस्टम इज इक्वल और ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सिस्टम। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कॉर्नर में आपको दिख रहा है द ग्राउंड स्टेट ऑफ अ सर्टेन सिस्टम विद एनर्जी एप्सिलॉन नॉट। आपको एक सिस्टम दिया है जिसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी एप्सिलॉन नॉट। अगर आप यहाँ पर पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं तो आपको पता है एनर्जी करेक्शन होगा। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन करके इसकी वैल्यू क्या रखी है, एप्सिलॉन 1 कर दी है। इट मीन्स आपने क्या सिस्टम पर पर्टर्बेशन अप्लाई किया एंड एनर्जी क्या हो गई, एप्सिलॉन 1। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आपने सिस्टम पर पर्टर्बेशन अप्लाई करके क्या इसको बना दिया, एक पर्टर्ब्ड सिस्टम। which has its energy is in the form of epsilon 1 and the perturbation is v। ये एंड जो इसका ओरिजिनल सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं हम बिना विदाउट पर्टर्बेशन, उसकी एनर्जी कितनी है, ई नॉट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सिस्टम देखिए, एक सिस्टम जिसकी ई नॉट है, एप्सिलॉन नॉट है, उस पर पर्टर्बेशन अप्लाई किया एंड इसकी सिस्टम की एनर्जी हो गई एप्सिलॉन 1, और जो इसका ओरिजिनल सिस्टम उसकी है ई नॉट। अब देखिए मैंने आपको क्या बात बोली थी, द एनर्जी ऑफ पर्टर्ब्ड सिस्टम, एनर्जी ऑफ पर्टर्ब्ड सिस्टम एप्सिलॉन 1। ओके फ्रेंड्स, एनर्जी ऑफ पर्टर्ब्ड सिस्टम इज इक्वल और ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सिस्टम। यहाँ पर ये क्या ओरिजिनल सिस्टम, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स,
इस परटर्ब सिस्टम की टोटल एनर्जी तो क्या आ जाएगी, ये तो एप्सिलॉन वन क्या है, आफ्टर सेकंड ऑर्डर करेक्शन। ग्राउंड स्टेट में भी इसकी कुछ एनर्जी है, जब आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन किया तभी एप्सिलॉन वन होती है, सेकंड ऑर्डर करते तो कुछ और हो जाती फर्स्ट ऑर्डर पे। तो ये आपकी टोटल एनर्जी क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन वन। ठीक है, ये तो ग्राउंड स्टेट में, ये आफ्टर फर्स्ट डिग्री करेक्शन। ओके फ्रेंड्स, एंड ये आपकी क्या है, ई नॉट जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम की एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू माय स्टेटमेंट द एनर्जी ऑफ परटर्ब्ड सिस्टम इज इक्वल और ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सिस्टम। ये रिलेशन आएगा परटर्बेशन थ्योरी का। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो एप्सिलॉन और ग्राउंड स्टेट में ये फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, एंड ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड। तो ये आप भले ही, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, द एनर्जी ऑफ परटर्ब्ड सिस्टम इज इक्वल और ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड सिस्टम। ये बात आपको फ्रेंड्स ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है परटर्बेशन थ्योरी की, उसी से ये रिलेशन फाइंड हुआ आपको। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका 5th क्वेश्चन, 4 मार्क्स का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज द स्पेशियल पार्ट ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट B triplet sigma u plus of hydrogen molecule is proportional to 1 sigma g plus 1 sigma u minus 1 sigma g into 1 sigma u using linear combination of atomic orbital to molecular orbital expansion of 1 sigma g and 1 sigma u in terms of 1s atomic orbitals, one can infer that this wave function has, and you have 4 option friends। आपको क्वेश्चन में ये वेव फंक्शन दिया है 1 सिग्मा जी इंटू 1 सिग्मा यू माइनस 1 सिग्मा जी इंटू 1 सिग्मा यू। आपको ये फाइंड करना है कि इस पर जब आप LCAO अप्लाई करते हैं तो ये वेव फंक्शन में आयनिक पार्ट है, कोवैलेंट पार्ट है, दोनों पार्ट्स होंगे या दोनों ही पार्ट्स नहीं होंगे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है आपका। ओके, चलिए देखते हैं। सी, हम अज्यूम करते हैं 2 एटम्स हाइड्रोजन के, ये रहे, ये है आपका HA, ये है आपका HB। इसके इलेक्ट्रॉन को आपने दिया नंबर 1, इसके इलेक्ट्रॉन को आपने दिया नंबर 2। तो इनके ऑर्बिटल्स को साई G1 दे देंगे, साई U1। जीरेड एंड अनजीरेड 2 ही तो होते। इसी तरह इनके ऑर्बिटल्स को आप क्या दे देंगे, साई G2 एंड साई U2। ओके फ्रेंड्स, इसका वेव फंक्शन आप मान लीजिए फाई ए, इसका मान लीजिए आप फाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ट्रिपलेट सिग्मा यू प्लस, वेव फंक्शन गिवन है 1 सिग्मा G1 1 सिग्मा U2 माइनस 1 सिग्मा G2 1 सिग्मा U1, ये गिवन है। इट मीन्स ये आपका क्या है फ्रेंड्स, 1 सिग्मा G1 किसके बराबर आ मारे, 1 सिग्मा G1, यानी ये आपका है ए का वेव फंक्शन ऑफ ए, ये आपका क्या है, वेव फंक्शन ऑफ सेकंड, ये भी आपका क्या है, वेव फंक्शन ऑफ सेकंड, एंड ये आपका क्या है, वेव फंक्शन ऑफ ए। ओके फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे ए एंड बी। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपका, ये क्या है, कोवैलेंट पार्ट है, आयनिक पार्ट एब्सेंट है इसमें। तो इट मीन्स आपके ये जो क्वेश्चन में वेव फंक्शन गिवन है, इसमें ओनली आपका क्या है, कोवैलेंट पार्ट प्रेजेंट है।
ओनली कोवेलेंट पार्ट। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड, ओनली कोवेलेंट पार्ट, ये क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन था ये 4 मार्क्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्वेश्चन सेज टू बाउंड स्टेशनरी स्टेट्स 1 and 2 of a 1 electron atom with E2 is greater than E1 where E is the total energy, obey the following statement about their kinetic energy and potential energy is. You should find the relationship between kinetic energies and potential energies of both of the systems and you have 4 option. ओके फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन फाइंड करना है दोनों सिस्टम्स के, सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड के। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सी क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, E1 इज लेस देन E2 मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम 1 इज लेस देन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम 2। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या है वीरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अकॉर्डिंग टू योर वीरियल थ्योरम के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द V पोटेंशियल एनर्जी। ओके फ्रेंड्स, and the total energy should be the half of its potential energy and total energy is minus of kinetic energy। यहाँ पे K या T एक ही बात है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये रिलेशन आपको मिल गया। E इज इक्वल टू V/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ T। टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी से रिलेशन वीरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, टोटल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन वीरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए यहाँ से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या पता लग रहा है, अगर आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ 2 इज़ ग्रेटर देन टोटल एनर्जी ऑफ 1 होगा तब V2 भी क्या हो जाएगा, V1 से ज़्यादा हो जाएगा। इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर आपके E2 E1 से ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या माइनस में, तो आपका इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी T1 क्या हो जाएगा, T2 से ज़्यादा हो जाएगा, T2 क्या होगा, T1 से कम हो जाएगा। वीरियल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फ्रेंड्स समझ आ रहा है आपको ये। ओके, तो ये दोनों रिलेशन ही आपको फाइंड करने थे V2 एंड V1 में, T1 एंड T2 में। आप देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, कॉर्नर में क्वेश्चन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, T2 इज़ लेस देन T1 यही है एंड V2 इज़ ग्रेटर देन V1। सो योर ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, सो ये थे आपके दिसंबर 2016 में आए हुए क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे फ्रेंड्स। फिर भी किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी हो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।